یہ لو بیٹا، یہ پہن لو، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں جو ہمیشہ گھر کی بڑی بہو کو دیے جاتے ہیں۔ نور بیگم نے اسے سونے کے کنگن کا باکس تھمایا تھا۔ آج ولیمہ تھا جس کے لیے وہ خود ہی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے پارلر وغیرہ سے تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے میک اپ زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی تیار ہونا چاہتی تھی، ہلکا پھلکا سا۔ وہ اپنی بارات میں بھی خود ہی تیار ہوئی تھی اور اب ولیمے میں بھی خود ہی ہو رہی تھی۔ بہت پیارے ہیں آنٹی۔ وہ کنگن نکالے، ان کا خوبصورت ڈیزائن دیکھتی مسکرا کر بولی، آنٹی نہیں ماما۔ نور بیگم نے اسے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے نے انہیں کبھی ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا تو کیا ہوا، مگر بہو تو ماں کہہ سکتی تھی نا۔ ماما، صبح جو کچھ ہوا ہمیں اس پر افسوس ہے۔ ہم نے دیکھا تھا آپ لوگ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے تھے، مگر شاید ان کا موڈ خراب تھا، تبھی وہ آپ سے کافی روکھے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ آئلہ نے صبح کے لیے معذرت چاہی۔ وہ پہلے کون سا ہم سے ٹھیک سے بات کرتے تھے؟ نوال کے اچانک کمرے میں آ کر کہنے پر نور بیگم نے اسے گھور کر تنبیہ کروایا، کیا مطلب؟ آئلہ نے الجھن بھری نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا۔ نور بیگم نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن بات کھلے گی تو ضرور، مگر اتنا جلدی وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ وہ نرمی سے کہتی ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ نور بیگم کے چہرے پر صاف پریشانی تھی، جبکہ نوال کے چہرے پر اداسی۔ بھابھی، یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتی۔ آپ ابھی نئی ہیں اس لیے کچھ نہیں جانتی، مگر آہستہ آہستہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ یہاں جو کچھ دکھ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ نوال تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کمرے سے نکل گئی تو آئلہ نے ناسمجھی سے نور بیگم کو دیکھا تھا۔ باہر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، میں انہیں دیکھتی ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نور بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس کی سوالیہ نظروں سے نظریں چراتی باہر نکل گئی۔ پیچھے آئلہ نوال کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس کی بات کے پیچھے آخر مطلب کیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت بڑا راز ہے جو وہ جاننا چاہتی تھی۔ اب شام میں فنکشن زور و شور سے شروع ہوا تھا۔ رائد نے آئلہ کی وجہ سے مرد اور عورتوں کا الگ انتظام کروایا تھا، جو تراب خان کو بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ سوائے صبر کا گھونٹ بھرنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حویلی کے پچھلی جانب عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ آگے کی طرف مردوں کے بٹھانے کا۔ نوال کمرے میں اپنا میک اپ دیکھنے آئی تھی۔ وہ پرپل میکسی میں ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے 2-3 تصویریں لی اور اسی وقت حسام کو بھیج دی۔ ایک مسکراتی نظر فون پر ڈالتی خود کو شیشے میں دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ ابھی اس نے 2 سیڑھیاں پھلانگی تھیں کہ سامنے سے ایک ویٹر جوس کی ٹرے لیے اس کے سامنے آیا، جس سے اس کے قدموں کو بریک لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور آپ یہاں اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ مہمان باہر ہیں سارے، باہر جائیں۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ لہجے کو مضبوط کرتی سامنے کھڑے اونچے قد قامت والے ویٹر کو دیکھ کر بولی، جس کے چہرے پر گھنی داڑھی مونچھیں اور سر پر کیپ تھی، جبکہ وہ بڑی دل فریبی سے اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میڈم جوس، بھاری آواز میں کہتے اس نے ٹرے اس کے سامنے کی تھی، جبکہ نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی تھیں۔ نہیں چاہیے۔ وہ ٹرے ہاتھ سے پرے دھکیلتی 2 سیڑھیاں تیزی سے اتری۔ ارے میڈم، ایسے کیسے؟ جوس تو لے لیں۔ وہ ویٹر ویسے ہی بھاری آواز میں کہتا تیزی سے اس کے آگے آیا تو نوال اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے دبی آواز میں بولی تھی، جبکہ دانتوں کی نمائش کیے وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ ابھی اپنے بابا کو جا کے تمہاری شکایت کرتی ہوں، وہ انگلی دکھا کر کہتی اس کی سائڈ سے گزر کر نیچے کی جانب بڑھی۔ اپنے نام کی پکار پر اس کے سیڑھیاں اترتے قدم منجمد ہوئے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مسکراتا محبت سے بھرپور لہجہ۔ وہ اس کی آواز کو تو 100 سال بعد بھی پہچان سکتی تھی۔ حسام، ایک جھٹکے سے مڑتے دھیمی آواز میں اس نے کہا تو وہ سکون سے مسکرا دیا۔ نوال نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے جلدی سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اسے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ بھی جائیں اندر۔ کیا سب کو پتہ چل جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ وہ جھنجھلائی تو وہ اپنی ہنسی روک کمرے میں قدم رکھ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا اس کے۔ میڈم، آپ کو زیب نہیں دیتا ایسے ایک ویٹر کو اپنے کمرے میں بلانا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو نوال نے اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا۔ نکلی داڑھی مونچھوں میں وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حسام، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے پہچان لیا تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ فکر مندی سے بولی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے وہ کب سے محفل میں گھوم رہا تھا، اور اگر کوئی اسے پہچان لیتا تو؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایک ویٹر کے آنے سے بھلا کون
सी बदमज़गी होगी। वो मज़े से साने उसका कर बोला तो नवाल ने अपना माथा पीटा। उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि हसाम उसकी बात को सीरियस ले लेगा। हसाम मैं मजाक कर रही थी, वो बेचारगी से बोली, लेकिन मैं तो सीरियस था ना। वो दू बदू बोला। उफ हसाम, आप जाएं यहाँ से प्लीज़। उसने तेज़ी से धड़कते दिल के साथ घबराते हुए मिन्नत की। चला जाऊँगा, पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूँ। हसाम हाथ में पकड़ी ट्रे बेड पर रखता दोनों हाथ सीने पर बांधे नज़रें उसके वजूद पर टिकाए बोला, बस बहुत देख लिया, तस्वीरें भेजी हैं, इसमें देख लीजिएगा बाकी। इससे पहले कि मेरी गैर मौजूदगी को महसूस करके कोई मुझे ढूंढने आया, आप चले जाएं यहाँ से। वो सहमे हुए लहजे में बोली, मगर हसाम पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही खड़ा उसे मुस्कुराती नज़रों से देखता रहा। उसने नाम को अच्छा खासा खींचा तो वो खुल के हंस दिया। जा रहा हूँ यार, तुम तो खामखाई डर रही हो, कुछ नहीं होता। वो ट्रे उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि दरवाज़ा अचानक नॉक हुआ। नवाल बेटा, बाहर से नूर बेगम की आवाज़ आते देख नवाल की तो गोया सांसें ही थमी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। अगर थोड़ी देर में कुछ ना हुआ तो यकीनन वो बेहोश हो जाती। नवाल बेटा ठीक हो आप? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप कमरे में हो ना? नूर बेगम की फिर आवाज़ आई। हसाम उसे मुसलसल कुछ कहने का बोल रहा था, मगर उसकी आवाज़ तो जैसे हलक में ही अटक गई थी। नवाल बोलो, बोलो इन्हें कि तुम ठीक हो। हसाम हल्की आवाज़ में सख्त तो उसने आंसू भरी नज़रें उठाकर उसे देखा। नवाल, बाहर नूर बेगम फिक्रमंदी से दरवाज़ा बजाए जा रही थी, मगर नवाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नवाल इधर देखो, तुम बाहर जाओगी और कहोगी कि तुम वॉशरूम में थी, समझी? आखिरकार नवाल को कोई हरकत ना करते देख हसाम ने उसका एक बाजू पकड़ते झिंझोड़ा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। और आप? अपनी माँ की बाहर से आती मुसलसल आवाज़ पर वो अपने बंद होते दिल के साथ बस इतना ही कह पाई थी, तुम बाहर जाओ और जो मैंने कहा है वैसा ही कहो, उन्हें मुतमईन करके बाहर जाओ। मैं भी तुम लोगों के पीछे ही रास्ता साफ देखकर निकल जाऊंगा, समझ गई? हसाम ने नरमी से समझाया तो वो मरे मरे अंदाज में गर्दन हस्पात में हिला गई। नवाल, नूर बेगम ने परेशानी से पुकारा। आई। वो बमुश्किल हलक तर करते दरवाजे की तरफ बढ़ी। हसाम जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गया। खोलो। लॉक पर हाथ रखे दरवाजे के साथ दीवार के साथ खड़े हसाम को डर से वो देख रही थी। जब हसाम ने धीरे आवाज़ में कहा, उसे आंखें दिखाईं तो वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोल गई। नवाल क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा है? दरवाज़ा खोलते ही नूर बेगम के सवालात की बरसात शुरू हो गई। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वॉशरूम में थी इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। नवाल काफ़ी संभल कर लहजा नॉर्मल रखते बोली तो नूर बेगम मुतमईन हुई। अच्छा नीचे चलो, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। जी। वो दरवाज़ा बंद करती उनके साथ ही नीचे उतर गई, जबकि जाते जाते बार बार मुड़कर कमरे के बंद दरवाजे को वो देख रही थी। उन लोगों के निकलने के 5 मिनट बाद ही हसाम खामोशी से दबे पांव हवेली से निकल गया। वो बस यहाँ नवाल से मिलने आया था, उससे मिल लिया, उसे देख लिया, अब उसका यहाँ कोई काम ना था। कैसी हैं भाभी साहिबा? आयला जो राइद के साथ स्टेज पर बैठी नकाब के नीचे से खाना खा रही थी, अपने उकब से उसे आवाज़ आई। उसने और राइद दोनों ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो जुजलान मुस्कुराते हुए उनके सामने आया। आपने मुझे पहचाना? वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला, आप जुजलान भाई हैं ना? इनके भाई। आयला ने उसे पहचानते धीमे लहजे में जवाब दिया, जी मैं इनका भाई ही हूँ। जुजलान शौकी से राइद को देखता इन का पर जोर देकर बोला तो राइद नागवारी से गर्दन मोड़ गया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, वो खुशी से बोली, जबकि राइद के चेहरे के तासुरात देखते जुजलान को बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आखिर इतनी अच्छी भाभी जो मिली है, लगता है आपकी और मेरी खूब जमेगी। जुजलान राइद को चिढ़ाने की खातिर शरारत से बोला, और वही हुआ जिसका उसे इंतज़ार था। राइद जब्त करते खड़ा हो गया। चलो आयला, हो गया वलीमा ख़त्म, और तुम्हें ज़्यादा मेरी बीवी से रिश्तेदारी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। राइद आयला का हाथ थामे नरमी से आयला से कहता, सख्ती से जुजलान को बावर करवाता हवेली की अंदरूनी जानिब बढ़ गया। पीछे सब उसे देख कर रह गए। अरे मैंने क्या किया है? जुजलान कंधे उचकाकर ऐसे बोला जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, या उसकी अपने भाई से बहुत दोस्ती हो जो वो पहली बार ऐसे सख्ती से बात करके गया था। उनको जाते देख नूर बेगम और नवाल भी परेशान हुई थी, मगर ये उनकी मजबूरी थी कि वो राइद से जाकर कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए वो भी मेहमानों की तरफ मुतवज्जो रहीं। हमें ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए था, बाहर सब मेहमान हैं, क्या सोच रहे होंगे? उसने कमरे में आकर आयला का हाथ छोड़ा तो वो अपना नकाब हटाती फिक्रमंदी से बोली, जिसे जो भी सोचना है सोचता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा गया। आयला को एक और झटका लगा था, मतलब वो स्मोकिंग भी करता है, मगर स्मोकिंग इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी शराब बड़ी बात थी। आपने जुजलान भाई से ये क्यों कहा कि वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश ना करें, जबकि हमारे बीच तो रिश्ता है ना अब भाभी देवर का? आयला नरमी से कहती उसके पीछे आ खड़ी हुई। जो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा अपने अंदर के गुस्से को धुएं की सूरत बाहर निकाल रहा था।
कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनके साथ, समझी तुम। वो एकदम मुड़ता गुस्से से दहाड़ा तो आयला डर कर 2 कदम पीछे हुई। आयला को समझ नहीं आया कि वो क्यों अपने ही भाई से रिश्ता नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो राइद ऐसे बिहेव कर रहा है। उसकी आंखों में खौफ देखते राइद ने एक गहरा कश भरा धुएं में हवा में उड़ाया और 2 कदम चलता उसके मुकाबिला खड़ा हुआ। आयला, बस तुम इतना समझ लो, अगर इस घर में तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ मेरे साथ है, समझी। राइद बहुत नरमी से उसके शाने था में समझा रहा था। जिस वक्त उसने सिवाय हाँ में गर्दन हिलाने के कोई चारा नहीं समझा था अपने पास। वो उसके इस धूप छाँव जैसे रूप को समझ नहीं पा रही थी। एकदम वो बिल्कुल नर्म पड़ जाता था और दूसरे ही पल गुस्से से लाल पीला हो जाता था। आयला पहले अच्छे से उसकी नेचर को समझना चाहती थी, फिर वो उससे तफसील से बात करने का फैसला कर चुकी थी। माजी की यादें एकदम उसके दिमाग में घूम गई और फिर जुज़लान का छेड़ना उसे मज़ीद गुस्सा दिला गया। वो आयला के सामने गुस्सा करके उसे मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसलिए बगैर कुछ बोले कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि वो बाहर निकलता आयला जल्दी से कहती उसके पास आई, दिमाग को सुकून बख्शने। राइट स्पार्ट अंदाज में कहता अभी कदम उठाने ही लगा था कि आयला ने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं?" आयला को लगा वो कल की तरह फिर शराब न पी कर आए, इसलिए उसने पहले ही रोक दिया था उसे। जबकि अपने बाजू पर उसका लम्स महसूस करते राइट के जज्बात मुँह उठाने लगे। "क्या चाहती हो तुम? नहीं जाऊँ?" वो उसकी जानिब घूमता उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर गया तो आयमा की धड़कनें मुंतशिर हुई। वो बेकाबू होते दिल के साथ नफ़ी में सर हिलाती, उसकी उंगलियों में दबी सिगरेट नरमी से लेती ज़मीन पर फेंक कर अपनी सैंडल से मसल गई तो राइट के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई। "ठीक है, नहीं जाता," वो मार आलूद लहजे में कहता उसके सर पर बंधा स्कार्फ खोलने लगा, जो पीच कलर के उसके सूट का मैचिंग का था। खूबसूरत सा स्कार्फ था, लेकिन लम्हे भर में खुल गया। "हाँ, हम चेंज कर लें?" राइट की सांसों की तपिश अपने माथे पर महसूस करते उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ अटक अटक कर अदा हुए। "मैं हूँ ना इस काम के लिए।" नरमी से उसके कंधे से उसका भारी दुपट्टा और स्कार्फ उतार कर सोफे की जानिब उछालते वो एकदम उसे अपने बाजू में उठा गया, जिस पर आयला ने बगैर कोई मज़ाहमत किए उसकी गर्दन में सर डाले, आंखें बंद कर लिए और अपना सर उसके कंधे पर टिका गई। राइड ने उसे बहुत नरमी से बेड पर लिटाया, जैसे वो कोई शीशे की गुड़िया हो जिसे जोर से रखते से टूट जाएगी। आपने हमें मुंह दिखाई नहीं दी।" राइड का हाथ बालों में बंधे जूड़े से उलझते महसूस करके उसने लड़खड़ाती जुबान के साथ कुछ वक्त की रिहाई के लिए बहाना बनाया, मगर वो जानती थी कि रिहाई नामुमकिन है। "पहले अच्छे से मुंह तो देखने दो," उसने मायनी खेजी से कहा। "आयला राइद खान, याद रखना, जागीरदार राइद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर उसे कोई अजीज़ है तो वो तुम हो। मैं सारी ज़िंदगी तुमसे वफ़ा निभाने का वादा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे साथ वफ़ा निभाओगी।" वो भारी लहजे में उसके कान में कहता आयला का दिल बुरी तरह धड़का गया। "मैंने आज से पहले किसी को अपने हवासों पर सवार होने की इजाज़त नहीं दी, मगर तुम पहली लड़की हो जो बुरी तरह मेरे हवासों पर सवार हो गई हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही मेरे हवासों पर सवार रहो, मुझे हर चीज़ का होश भुलाकर खुद में गुम कर लो।" वो लो देती नज़रों से उसकी सुरमई मुस्कुराती आंखों में देखता, मदहोशी से कहता उसकी तरफ झुका था।